रिजर्व बैंक ने लोगों को दिया बड़ा भरोसा, कहा बैंकों में नहीं है पैसों की कोई कमी। कोरोना संकट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था 7% से ज्यादा दर से करेगी विकास। पीएम ने कहा रिजर्व बैंक की घोषणाएं तरलता में करेंगी वृद्धि। देश भर में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या हुई 11,201, साथ ही 1,748 लोग हुए ठीक। कोरोना से अब तक 437 लोगों की हुई मौत। टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा कम्युनिटी किचन से जरूरतमंदों को मिलता रहे भोजन। प्रदेश में ना रहे कोई भूखा, ना भूखा सोए। और प्रदेश में गेहूं खरीद लगातार तीसरे दिन भी जारी। गेहूं क्रय केंद्रों पर किसान कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन। फसल कटाई में भी तेजी। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संकट के इस मुश्किल दौर में आज रिजर्व बैंक ने लोगों को बड़ा भरोसा दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश को ये जानकारी दी है कि बैंकों में पैसों की कमी नहीं है और न ही भविष्य में ऐसी किसी भी कमी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इस महामारी के असर से वैश्विक अर्थव्यवस्था को $9 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है, लेकिन भारत की स्थिति इस मामले में दूसरे देशों से काफ़ी बेहतर है और भारतीय अर्थव्यवस्था इस संकट के बीत जाने के बाद 7% से ज़्यादा की दर से विकास करेगी। On April 14, the IMF released its global growth projections, revealing that in 2020, global economy is expected to plunge into the worst recession since the Great Depression, far worse than what had happened during the global financial crisis. The IMF's economic counselor has named it the Great Lockdown, estimating the cumulative loss to global GDP over 2020 and 21 at around $9 trillion, which is greater than the economies of Japan and Germany combined. Within this downturn, the projections are replete with even sharper declines in output in various countries. India is among the handful of countries that is projected to cling on somewhat tenuously to positive growth at 1.9%. In fact, this is the highest growth rate among the G20 economies as estimated by the IMF. India is expected to post a sharp turnaround and resume its pre-COVID, pre-slowdown trajectory by growing at 7.4% in 2021-22. वहीं कृषि क्षेत्र पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस बार खरीफ की जो फसल है उसकी बुआई पिछले साल की तुलना में काफी बेहतर रही है। In my statement of March 27, I had referred to continuing resilience of agriculture and allied activities on the back of all-time highs in production of food grains and horticulture, with huge buffer stocks of rice and wheat far in excess of the buffer norms. By April 10, pre-monsoon kharif sowing had begun strongly, with acres of paddy, which as you know is the principal kharif crop, up by 37% in comparison with the last season, that is in comparison with the Kharif of 2019. States such as West Bengal, Telangana, Odisha, Assam, Karnataka and Chhattisgarh are leading in sowing activity despite the lockdown. On April 15, the India Meteorological Department IMD forecast a normal southwest monsoon for 2020 season, with rainfall expected to be 100% of the long period average. आरबीआई ने रिवर्स रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की है, जबकि सीआरआर और रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये आज भी का महत्वपूर्ण बड़ा फैसला है। The RBI absorbed rupees 6.9 lakh crore through the reverse repo window, so that much of surplus was available with the system. Now, in order to encourage the banks to deploy these surplus funds in investments and loans in productive sectors of the economy, it has been decided to reduce the fixed rate reverse repo rate
under the liquidity adjustment facility by 25 basis points from 4% to 3.75% with immediate effect. The policy repo rate, however, remains unchanged at 4.4% because that is a matter which is decided by the MPC, and also the marginal standing facility rate and bank rate, they also remain unchanged at 4.65%. रिजर्व बैंक की आज की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। पीएम ने कहा रिजर्व बैंक की ओर से की गई आज की घोषणाओं में तरलता वृद्धि करेंगी और ऋण आपूर्ति में सुधार होगा। इन कदमों से हमारे जो छोटे व्यवसाय हैं, एमएसएमई, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। ये WUMA की सीमा बढ़ाकर सभी राज्यों की भी मदद भी करेगा। भारत में कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में 11,201 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,748 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कोविड-19 के कारण भारत में अब तक 437 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के समूह की अहम बैठक दिल्ली के निर्माण भवन में हो रही है। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित कई अन्य मंत्री शामिल हैं। टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कम्युनिटी किचन से जरूरतमंदों और शेल्टर होम्स के निराश्रितों में पहले की तरह ही बेहतर ढंग से सबको भोजन मिलता रहे। यह सुनिश्चित होता रहे कि प्रदेश में ना तो कोई भूखा रहे ना भूखा सोए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि किसी के पास राशन कार्ड हो या ना हो, आधार कार्ड हो या ना हो, वह शहर का नागरिक हो अथवा गांव का, अगर वह जरूरतमंद है तो उसे खाद्यान्न अवश्य मिले। उन्होंने घुमंतु लोगों तक भी भोजन और राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 30 जून 2020 तक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के तहत सभी जरूरतमंदों को राशन मिलता रहेगा। गुरुवार शाम को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सरकार ने जानकारी दी है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 773 पहुंच गई है, जबकि 69 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 13 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में सैंपल की टेस्टिंग ने रफ्तार पकड़ी है। पिछले 24 घंटों में 6,215 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। संक्रमित लोगों की कुल संख्या 773 है, 773। ये 776 प्रकरण 48 जनपदों से प्राप्त हुए हैं। इनमें से अब तक 69 लोग 69 पूर्णतया उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी है कि महाराजगंज के 6 केसेस का प्रथम टेस्ट नेगेटिव आया है, जबकि द्वितीय टेस्ट होना बाकी है। आशा है कि अब महाराजगंज जिला आने वाले समय में कोरोना फ्री हो जाएगा। पीलीभीत जनपद कोरोना मुक्त हो चुका है। जो है कोरोना फ्री जो एक नॉर्म है SOP, उसके अंतर्गत 2 केसेस और 2 केसेस का पूरा टाइम पूरा होने के बाद नेगेटिविटी आई थी और पीलीभीत भी कोरोना फ्री हो गया है और आगे अभी पीलीभीत से ऐसी कोई संभावना या शिकायत नहीं मिली। इसी के साथ साथ आज ये खबर मिली है कि प्रथम चरण में महाराजगंज में भी जो 6 केसेस थे उनका प्रथम टेस्ट अभी नेगेटिव आया है। अभी द्वितीय टेस्ट कंडक्ट करना बाकी है और ये संभावना है कि महाराजगंज जिला भी जो है वो कोरोना फ्री आगे आने वाले समय में कुछ दिनों में हो जाएगा। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव खबर है कि एक और जहां कोरोना पॉजिटिव के जो हमारे पेशेंट्स हैं उनकी जो संख्या है उस संख्या में बहुत सारे इसमें से, जैसा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग बता रहे हैं, बहुत सारे कोरोना का अपना पूरा समय पूर्ण करके स्वस्थ होकर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ बाहर आ रहे हैं। सोनभद्र जिले में अचानक 11 कोरोना संदिग्ध मिलने की सूचना ने प्रशासन के साथ ही जिले के आम लोगों को भी चिंता में डाल दिया है। ये सभी कोरोना संदिग्ध जौनपुर के एक शेल्टर होम में रखे गए थे, जिन्हें 14 दिन के उपरांत छोड़ दिया गया था। जौनपुर के जिलाधिकारी द्वारा ये सूचित किया गया है कि जहां इन्हें रखा गया था वहां के एक मरीज का जांच के बाद संक्रमित होना पाया गया था।
सूचना मिलते ही सोनभद्र जिला प्रशासन ने 3 अलग-अलग गांव के इन 11 लोगों को तत्काल जिला अस्पताल स्थित क्वारंटाइन वार्ड में दाखिल कर सैंपल के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन सभी गांवों को पूरी तरह से सील कर आवाजाही पर बिल्कुल रोक लगा दी गई है। ये सब जौनपुर से मरीज आए हुए हैं और दिल्ली में किसी कोरोना पॉजिटिव के केस के संपर्क में लोग रहे हैं। तो जौनपुर में ये लोग आए हैं, जौनपुर में लाए गए थे। ये लोग 14 दिन क्वारंटाइन में वहाँ रहे थे, तो उनको यहाँ भेज दिया गया। तो ये लोग 3 गांव के लोग रहने वाले हैं। चौपन गिधिया के 6 मरीज हैं और सलैयाडीह के 2 मरीज हैं और झारो कला के 3 मरीज हैं। इन लोगों को फिर जिला अस्पताल में पुनः लाया जा रहा है। इनकी जांच होगी, इनका सैंपल बनारस भेजा जाएगा जांच के लिए और इनको हम क्वारंटाइन में रखेंगे। जो हमारे यहाँ फैसिलिटी क्वारंटाइन है जी, उसको रखा जाएगा जिला अस्पताल। जो लोगों का जो गांव सील किए गए हैं वहाँ से किसी का आवागमन नहीं होने दिया जाएगा। वहाँ आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रहेगी। अंदर केवल प्रशासन, पुलिस और सफाई के कर्मचारी अंदर जा सकेंगे। वहाँ 24 घंटे के लिए पोस्ट लगा दी गई है और साथ ही जो लोग 11 लोग हमने फैसिलिटी क्वारंटाइन किए हैं उनका स्वैब लेकर के टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। बहराइच में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को 5 किलो मुफ्त चावल वितरण में कोटेदार द्वारा बढ़ती गई लापरवाही पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की है। कोटेदार द्वारा लाभार्थियों को 5 किलो की जगह 3 किलोग्राम चावल दिया जा रहा था। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी की जा रही थी। जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के 2 कोटेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। साथ ही संबंधित एसडीएम ने तहसीलदार के समक्ष सभी ग्रामीणों में निर्धारित मात्रा में चावल वितरण कराना सुनिश्चित कराया। अभी अप्रैल महीने के जो दूसरे चरण का हमारा वितरण हो रहा है प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना का, जिसमें प्रत्येक राशन कार्ड धारक को उसकी यूनिट के अनुसार 5 किलो चावल प्रति यूनिट के हिसाब से निःशुल्क दिया जा रहा है। इस पर हम बड़ी कड़ाई से निगरानी रख रहे हैं। सारी दुकानों पर नोडल अधिकारियों की तैनाती है। इसके अलावा ब्लॉक लेवल पर नोडल अधिकारी के रूप में हम लोगों ने जिला स्तरीय अधिकारियों को तैनात किया है। हमारी 3-4 टीमें हैं जिसमें सप्लाई और वेट्स एंड मेजरमेंट के दोनों के लोग हैं जो लगातार घूम रही हैं, अपना निरीक्षण कर रही हैं। कल भी उन्होंने 30 से 40 दुकानों का निरीक्षण किया है और ऐसी दुकानें जहां पाई गई जहां काटा बाप वगैरह ठीक से प्रमाणित नहीं था, उस पर 24,000 के जुर्माने भी लगे हैं। और किसी भी जो शिकायत हमें प्राप्त होती है, किसी भी माध्यम से हमें कहीं अनियमितता प्राप्त हो रही है, उस पर हम तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। कल ही अभी एक घुमना भारू गाँव है ब्लॉक मिहीपुरवा का, और वहाँ के बारे में ये खबर मिली कि दुकानदार कह रहा है कि हम तो निर्धारित मात्रा में वितरण नहीं करेंगे। वहाँ तत्परता से जांच कराई गई, पुलिस बल भेजा गया और पंचायत सेक्रेटरी को भेजा गया। वहाँ पहले तो वितरण इंश्योर कराया गया कि निर्धारित मात्रा में वितरण हो जाए और उसके बाद दुकानदार पर मुकदमा दर्ज कराया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मेरठ जिले में निःशुल्क चावल वितरण शुरू हो गया है। जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने बताया है कि जिले में 4,47,000 राशन कार्ड धारक हैं जिनको गल्ले की दुकान पर चावल का वितरण किया जा रहा है। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी इन दोनों परिवारों को प्रति यूनिट के हिसाब से 5 किलो चावल मिलेगा। चावल का वितरण 26 अप्रैल के तक किया जाएगा। जिला पूर्ति विभाग द्वारा सभी राशन की दुकानों पर सैनिटाइजर रखा गया है। उपभोक्ताओं के राशन लेने से पहले हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं। राशन की सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गोले बनाकर कार्ड धारकों को उनमें खड़ा किया जा रहा है। देश पे जो एक कोरोना की आपदा आ पड़ी है, इसके कारण जो हमारी सरकार है वो अभूतपूर्व प्रयास कर रही है आम जनता के लिए, और जो भी लोग परेशान हैं वो उसके लिए सरकार ने बहुत प्रयास करे हैं। और आज एजेंसी पे भी 5 किलो पर यूनिट के हिसाब से चावल दे रहे हैं। हमारे घर में 4 यूनिट हैं और 20 किलो चावल हमें मिला है और 3 मई तक के लिए ये पर्याप्त राशन है। किसी को भी किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। हमारे मोहल्ले में भी कोई परेशानी है। हम मिल बांट कर एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं और सरकार की तरफ से इतने प्रयास किए जा रहे हैं जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। सरकार की तरफ से हमें राशन दिया जा रहा है और सरकार के हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं।
कि इस समस्या के दौर पे भी हमारा ध्यान रखा जा रहा है और हमें सही तरीके से बिल्कुल किसी बात की कोई समस्या नहीं और हमें राशन मिल रहा है। आज हमें चावल दिए जा रहे हैं पर यूनिट के 5 किलो के हिसाब से। हमारे घर में 3 जने हैं तो 15 किलो चावल हमें दिए गए हैं और मैं सरकार को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। फतेहपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना ग्रामीण अंचलों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रही है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री के आह्वान पर 3 महीने के लिए 3 LPG सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए इनके खातों में अग्रिम राशि डाली जा रही है। इस राशि के माध्यम से ये लोग सिलेंडर खरीद सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए फतेहपुर के गौरा कला गांव के महिला लाभार्थी खुद गैस एजेंसी पहुंचकर योजना का लाभ ले रही हैं। फतेहपुर जिले में लगभग 2,38,685 गरीब परिवारों को योजना के तहत लाभ मिला है। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए मोदी जी ने हम लोगों को पैसा फ्री भेजा है गैस भरवाने के लिए। लकड़ी कंडा था नहीं, इसीलिए उन्होंने गैस भरवाने के लिए पैसा फ्री भेजा है, इसलिए मोदी जी को धन्यवाद। चूल्हे में खाना बनाने के लिए ना लकड़ी था ना कंडा, अब मोदी ने अच्छी सुविधा दे दी है, इसलिए अब गैस 3 महीने के लिए फ्री भरवाने के लिए। हमारे यहाँ जैसे लॉकडाउन चालू है, इसीलिए हम लोगों को फ्री पैसा आया है, तो उसको 3 महीने के लिए गैस फ्री मिल रही। पैसा निकाल करके गैस भरवाने आए थे, फ्री गैस है। हाँ, पहले चूल्हा में खाना बनाती थी, लकड़ी नहीं थी, कंडा नहीं था, तो गैस हम लोग फ्री पैसा आया था तो गैस भरवाने आए। ये लॉकडाउन में हमारे यहाँ करीबन 4,000 उज्ज्वला कनेक्शन है, तो हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी की जो भी योजना है वो सुचारू रूप से चले, तो हम लोग उसी कोशिश करते हैं कि हर कंज्यूमर तक ये फ्री गैस जो मिल रही उसके घर तक पहुँचे। तो ये है कि वो कंज्यूमर अपने मोबाइल से गैस बुक करे, उसके बाद OTP नंबर आ जाता है, उससे हम सप्लाई कर देते हैं। अगर उसके पास मोबाइल नहीं है तो एक प्रोफार्मा है, उसको हम भर करके कंज्यूमर को बुक करके उसके होम डिलीवरी कर देते हैं। ललितपुर जिले में शासन द्वारा किसानों के गेहूं खरीदने की सुविधाओं का पूरा लाभ मिलने लगा है। कोरोना के चलते इस बार केंद्रों पर दस्ताने, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क के साथ साथ हाथ धोने के साबुन की विशेष व्यवस्था की गई है। किसानों को उनके गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति कुंटल का भुगतान किया जा रहा है। इस बार भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन टोकन की विशेष व्यवस्था के तहत किसानों और खरीद केंद्रों के लिए मोबाइल पर ऑनलाइन मैसेज करके बुलाने की व्यवस्था भी की गई है। किसानों का मानना है कि सरकार द्वारा खरीद के अगले 48 घंटे में ही पैसे भुगतान की DBT से होने से काफ़ी राहत मिली है। मैं आज आया हूँ, ट्रैक्टर मेरा चल गया है, तो मुफ्त मिल गया है, हाथ धोने को मिल गया है। रबी विपणन वर्ष 2020-21 के अंतर्गत MSP के अंतर्गत किसानों का गेहूं खरीदा जा रहा है। यहाँ पर MSP रखा गया 1925 रुपया, और चूंकि कोरोना वायरस के अंतर्गत यहाँ पर अभी वायरस फैल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ताकि किसान भाई हमारे प्रभावित ना हो, उनको कोई तकलीफ ना हो, हमने सैनिटाइजर की व्यवस्था करी है, हैंड वॉश की व्यवस्था करी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और उनको फेस मास्क और ग्लव्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर किसानों को ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है, क्योंकि एक टोकन जैसे ही आता है उसको हम तुरंत तोल देते हैं, किसान को हटा देते हैं, दूसरा किसान आता है, ताकि यहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। साथ ही साथ किसान भाइयों का जान माल का कोई भी खतरा ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखा जा रहा है। जनपद में 85 क्रय केंद्र जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित हो गए हैं और जो सभी सक्रिय हो गए हैं। 15 तारीख से गेहूं की खरीद होनी थी, आज से प्रारंभ हो जाएगी और ये 15 जून तक चलेगी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय स्तर से जो जिले की क्रय एजेंसियां हैं उनको लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें खाद्य विभाग को 3000 MT, भारतीय खाद्य निगम को 2000 MT, PCF को 77,500 MT और नेफेड को 10,000 MT, कुल मिला के 92,500 MT का। अम्बेडकर नगर में भी विशेष व्यवस्था के साथ निर्धारित क्रय केंद्रों पर किसानों से गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है।
जहां गेहूं लेकर पहुंचने वाले किसानों के लिए सैनिटाइजर, गुड़, पीने का पानी और बैठने की व्यवस्था की गई है। सरकार की तरफ से दी जा रही इस व्यवस्था से किसानों को बड़ी राहत और काफ़ी खुशी है। टांडा ब्लॉक में 3 और बसखारी ब्लॉक में 4 क्रय केंद्र बनाए गए हैं और गेहूं खरीद के इस शुरुआती दौर में खरीद धीमी है, लेकिन जैसे जैसे किसानों की संख्या बढ़ेगी और केंद्र खोलने की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए किसानों को एक साथ गेहूं लाने से रोकने के लिए पंजीकृत किसानों के खरीद का समय निर्धारित करके टोकन दे दिया गया है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो सके। किसान लोग गेहूं बेचने के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन में भी ऐसी व्यवस्था की है कि हम लोग आसानी से गेहूं बेच सकें। जो महामारी फैली हुई है यहाँ पर, उसके लिए सरकार ने बहुत प्रयास किया। यहाँ गेहूं क्रय केंद्र की सुविधा के लिए यहाँ पर हाथ में लगाने वाला सब सामान उपलब्ध कराया है और यहाँ पर तौल और बड़े कायदे से होता है। किसानों को जो राहत मिल गई है, इससे सारी व्यवस्था कर दी गई है। शासन के अनुरूप जो व्यवस्था है गेहूं खरीद की कर दी गई। किसानों को टोकन भेजा जाएगा और वो मैसेज जाएगा उनके मोबाइल पे कि किस दिन उनको गेहूं लेकर के आना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए और सैनिटाइजर और पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था सब कुछ कर दी गई है। कोई दिक्कत नहीं है। शासन की मंशा के अनुरूप यहाँ पर अभी तहसील क्षेत्र में 7 क्रय केंद्र शुरू हो चुके हैं, 4 बसखारी क्षेत्र में और 3 टांडा क्षेत्र में, और सभी केंद्र संचालित हैं। गेहूं खरीद शुरू हो गई है। अभी शुरुआत में खरीद स्लो है, धीमी है, लेकिन धीरे धीरे इसमें और तेज़ी आएगी। किसानों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है, इनको कोई समस्या ना आए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया जा रहा है। टोकन के माध्यम से उनको सूचित हो जा रहा है कि उनको कब आके और कब यहाँ पर गेहूं अपना बिक्री करना है। साथ ही उनको जो है, जो मूल्य है उनका समय अंतर्गत जो है वो दिलाया जा रहा है। जनपद अलीगढ़ में 92 केंद्रों पर किसानों से गेहूं खरीदने के विशेष प्रबंध किए गए हैं। लॉकडाउन के चलते मंडियों में भी भीड़ न जुटे, इसके लिए गाइडलाइन तय की गई है। इसी के आधार पर किसान मंडी में अनाज बेच सकेंगे। किसानों के लिए मास्क, हाथ धुलाने व शारीरिक दूरी बनाए रखने की व्यवस्था केंद्र प्रभारियों ने की है। पंजीकरण के लिए हेल्प डेस्क भी तैयार किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पंजीकृत किसान ही गेहूं बेच सकेंगे। गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपये रखा गया है। में 2 सरकारी केंद्र हैं, एक पीसीएफ का है, एक आरएफसी का है, खाद्य जिला। आज पहला दिन है और ये पीसीएफ का सेंटर शुरू हो गया है। जो आपने देखा है, यहाँ सोशल डिस्टेंस भी है, हाथ धुलवाने की व्यवस्था भी है, जो आप खुद देख रहे हैं, और ये काम चल रहा है। दूसरा सेंटर मेरे पड़ोस में है, आरएफसी का, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक का, वो उसका भी ये आज भी पहला दिन है। तो लेबर है, एक ट्राली उसके यहाँ आ गई है, और वो भी वही सिस्टम में है, सोशल डिस्टेंस है, हाथ धुलवाने का है और वो तुलाई का है। और जितनी लेबर है सब आपने खुद देखा है, मुंह बांधे हुए है। 1925 रुपये प्रति कुंटल में है। इनका रजिस्ट्रेशन हमने एक हेल्प डेस्क अपने दफ्तर में बनवा रखी है। जो मंडी यार्ड में आएंगे या कहीं का भी कोई किसान होगा, उसको हम जो है अब फ्री ऑफ कास्ट उसको रजिस्ट्रेशन देंगे। रजिस्ट्रेशन में बैंक पासबुक की ज़रूरत है, एक खसरा की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि उसका वो क्षेत्रफल आ जाएगा खतौनी से, खसरा से, और बैंक से बैंक की डिटेल आ जाएगी। हम बना के निःशुल्क देते हैं, हमारे यहाँ हेल्प डेस्क। अनाज लेके आया हूँ, मंडी लेवी लगी हुई है। यहाँ पर 1925 रुपये प्रति कुंटल का यहाँ रेट है। और जो भी कार्य हो रहा है यहाँ पर, मोदी जी ने जो बताया है कि अपनी उचित दूरी बना के रखें और अपने चेहरे को रूमाल वगैरह से ढक के रखें। मेरे पास भी अंगूछा है और सब कार्य ठीक हो रहा है, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। सरकार ने ये हमारी जो है सोची, बहुत अच्छी जो है सोची है कि जो कि किसान अपने लॉकडाउन में भी गेहूं बेच सके। यहाँ पे गले लेवी पे मैं अपना अनाज बेचने आया हूँ पहले दिन, और लॉकडाउन चल रहा है तो मास्क की जगह पे मैं अंगूछा मुँह से लगा लेता हूँ।
सीतापुर में लॉकडाउन के बीच सरकार ने गेहूं की खरीद शुरू कर दी है, जिससे किसानों और काश्तकारों में खुशी का माहौल है। लॉकडाउन के चलते सीमित हुए संसाधनों और कमाई की अनिश्चितता के बीच सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य गत वर्ष की अपेक्षा अधिक दिए जाने से किसानों के आर्थिक हालात में सुधार की गुंजाइश बढ़ गई है। यही कारण है कि किसान सरकार की तारीफ कर रहे हैं और प्रत्येक किसान के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हाथ धुलने और सैनिटाइज किए जाने का पूरा प्रबंध क्रय केंद्रों पर प्रशासन द्वारा किया गया है। जनपद में गेहूं खरीद के लिए 77 क्रय केंद्र बनाए गए हैं और जहां विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से खरीद की जा रही है। किसानों का कहना है कि उन्हें उचित मूल्य तो मिल रहा है, साथ ही 48 घंटे में पैसा भी उनके खाते में आ जा रहा है। एक ट्राला आज तौल गया है, एक ट्राला कल लेके आऊँगा। 1925 रुपये का रेट है, 1925 रुपये का रेट है। यहाँ हर चीज़ की सुविधा है, पानी की और कोरोना से बचने के लिए सामान भी है यहाँ, सैनिटाइजर और लाइफबॉय। मेरा गेहूँ है 110 कुंटल तोला गया है और सही सलामत तोला गया, कोई मुझसे घूस नहीं ली गई। और बाकी जो यहाँ पर साबुन का, मास्क का पूरा इंतजाम किया गया है, साबुन हाथ धोने के लिए, और सैनिटाइजर भी है, सब कुछ है, व्यवस्था सब सही है। हमारे यहाँ सीतापुर में 150 केंद्र बनाए गए हैं, तो हमारा कुल लक्ष्य जो है 1,20,900 मीट्रिक टन है। और सभी जी केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश है। सभी जगह सैनिटाइजर रखा है, साबुन रखा गया है और सारी व्यवस्थाएं हमारी पूर्ण। आज से शुरुआत हो गई खरीद की, मंडी सीतापुर में आज से शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे सब जगह शुरुआत हो गई। व्यवस्थाएं हमारी पूर्ण है, कहीं कोई समस्या नहीं है। गोंडा जिले में लॉकडाउन होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों की भरमार हो गई है। लोग घरों में रहते हुए अब उनके पास कोई काम नहीं है, तो उन्हें अब गेहूं की कटाई का बड़ा काम मिल गया है। चाहे किसान हो या बाहर मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो, इस समय अपने घर या गांव में गेहूं की कटाई में जुट गए हैं। सरकार द्वारा सभी किसानों की किसान सम्मान निधि के तहत सहायता धनराशि भी भेजी गई है। किसान इसका धनराशि का उपयोग अब फसल कटाई में कर रहे हैं। किसान गेहूं की कटाई में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन कर रहे हैं। गेहूँ काट रहे हैं, पक गया। गेहूँ पक गया, काटा जाता है दूर दूर से। मोदी जी कहे हैं कि दूर बना के रखो और दूर दूर से काटो। हाँ ठीक है कि बाहर के मना यही है ना, तो अपने लोग की बीमारी बढ़ी ना। दूरी बना के काट रहे हैं और मोदी जी साहब कहें कि दूरी बनाकर आप लोग गेहूँ काटिए, इसलिए दूर बना के गेहूँ काट। कोरोना वायरस के लिए हम लोग दूरी बना के रहते हैं जी। वो क्या है, कोरोना वायरस की वजह से हम लोग 1 मीटर की दूरी पर बनाकर गेहूँ काट रहे हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। लॉकडाउन में कृषि कार्यों के लिए किसानों को मिली छूट से चित्रकूट जिले के किसान रबी फसल गेहूं, चना की कटाई और मड़ाई में लग गए हैं। किसानों ने बताया कि लॉकडाउन में सरकार ने काफ़ी मदद की है। किसान सम्मान निधि खाते में आ गई है। फसल काटने और ले जाने में कोई परेशानी नहीं हुई है। कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन किया जा रहा है। चेहरे को कवर कर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है। देश और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। रिजर्व बैंक ने लोगों को दिया बड़ा भरोसा, कहा बैंकों में नहीं है पैसों की कोई कमी। कोरोना संकट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था 7% से ज्यादा की दर से करेगी विकास। पीएम ने कहा रिजर्व बैंक की घोषणाएं तरलता में करेंगी वृद्धि। देश भर में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या हुई 11,201, साथ ही 1,748 लोग हुए ठीक। कोरोना से अब तक 437 लोगों की हुई मौत। टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा कम्युनिटी किचन से जरूरतमंदों को मिलता रहे भोजन। प्रदेश में ना रहे कोई भूखा, ना भूखा सोए। और प्रदेश में गेहूं खरीद लगातार तीसरे दिन भी जारी। गेहूं क्रय केंद्रों पर किसान कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन। फसल कटाई में आई तेजी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। Choice, but I would say that doctors in these PPEs
The nation salutes them.